Okay, let us do some questions practice. So I have bought one question bank for this together with, और इसमें से कुछ questions हम लोग करते हैं. Okay, first question is the movement of water out of the cell when it is kept in a hypertonic solution. One word answer. Exosmosis. The condition of the cell when it is placed in a hypotonic solution. Turgid. Hypotonic solution में turgid. The term for inward movement of solvent molecules through the plasma membrane of a cell. Inward. The term for inward movement of solvent molecules through the plasma membrane of a cell. Okay, simple osmosis, or here particularly you can say endosmosis. The pressure exerted by the cell wall on the contents of the cell is Turgor pressure. the pressure exerted by the cell wall on the contents of the cell. By the contents of the cell on the cell wall, Turgor pressure. By the cell wall on the contents of the cell, cell wall pressure. If Turgor pressure exceeds the cell wall pressure, then what will happen? The cell can break. But if Turgor pressure is less than cell wall pressure, then the cell is in a flaccid condition. देख लीजिए डायग्राम को, देख लीजिए आप टेक्स्ट बुक में. वो वो जो है पेज नंबर, फटाफट, हाँ गुड, इसमें फटाफट रिवीजन होते भी जाना चाहिए. हाँ, पेज नंबर 44. पेज नंबर 44 का डायग्राम फटाफट देखते जाओ. ओके, प्लांट सेल है. प्लांट सेल का कंटेंट्स सेल वॉल के ऊपर अपना प्रेशर दे रहा है. ये वाला प्रेशर कहलाएगा टर्गोर प्रेशर. Equal and opposite pressure will be exerted by the cell wall, that is called wall pressure. If Turgor pressure exceeds wall pressure, then the cell may break. If the Turgor pressure is less than cell wall pressure, the cell is in a flaccid condition. You have to tell true or false. Transpiration helps in the absorption of water. True. Transpiration helps in the absorption of water. तो उसके कारण क्या होता है? ट्रांसपीरेशन पुल जनरेट होता है. जब ट्रांसपीरेशन होगा तभी तो ट्रांसपीरेशन पुल बनेगा. एंड ट्रांसपीरेशन पुल इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स दैट इज पुलिंग द वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑल द वे टू द वेरी टॉल प्लांट्स, वेरी टॉल ट्रीज. ठीक है, वो है ट्रांसपीरेशन पुल. ट्रांसपीरेशन पुल के अतिरिक्त और कौन से फोर्सेस काम करते हैं इन द एसेंट ऑफ सैप? रूट प्रेशर काम करता है, लेकिन रूट प्रेशर छोटे पौधे में ही काम करता है.
और जब रूट प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाता है छोटे पौधे में और ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, तब जाके कौन सा प्रोसेस होता है उसमें? गटेशन होता है। तब डायरेक्ट वाटर विल बी रिमूव्ड आउट थ्रू द इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपिरेशन पुल इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स दैट विल रिक्वायर्ड फॉर द एसेंट ऑफ सैप। नंबर 1 पोजीशन पे वही आता है, ठीक है। स्टिकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सिंगल टर्म बताइए। Water molecules are adsorbed onto the surface of the cell wall. That term, imbibition. The uptake of the minerals by the root hairs generally takes place against the concentration gradient, true or false? The process of this uptake is known as active transport. Is the process by which the root hairs will take in the mineral ions inside there is the vacuole. In the vacuole, the concentration of sap is high or low? High. Outside is low, so generally movement will be from high concentration to low concentration. लेकिन यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन से एनर्जी का एक्सपेंस करते हुए इसको अपटेक किया गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है मिनरल आयंस के अपटेक में काम आता है। वाटर अपटेक में कौन सा प्रोसेस चलेगा? ऑस्मोसिस चलेगा। It is the movement of the water molecules from its higher concentration to low concentration through semi-permeable membrane, osmosis. Metal ions के लिए active transport, salts के लिए active transport. Okay, when there is an increase in the atmospheric pressure, the rate of transpiration इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्वेश्चन ये पूछा कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, क्योंकि लीफ में जो स्टोमाटा है ये जो स्टोमाटल रीजन है, इधर गार्ड सेल्स है, how the water is coming out of the stomata, in what form it is coming out? Water vapor. So whether this removal in the form of water vapor is involving any expense of energy, it is passive process. What is that process? Simple diffusion is taking place. Okay,
inside there is high concentration of water, outside it is a dry low concentration, so water will diffuse as water vapor and come outside. But outside if you will increase the pressure, you increase the humidity, बहुत ह्यूमिडिटी बाहर बढ़ गई है, ओके, प्रेशर बढ़ गया, वाटर प्रेशर बढ़ गया है बाहर में, तब ये बाहर नहीं निकल पाएगा, वाटर का डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, वही चीज है. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज inversely proportional to pressure. Less pressure outside, more transpiration. More pressure outside, less transpiration. Next question. Nerium. The stomata are sunken stomata. ये एक ही एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में. The phenomena of the loss of water through a cut stem or injured part of the plant is called bleeding. The pH of the guard cells increases during daytime. फोटोसिंथेसिस पे अगर आप ध्यान दोगे तो इसको आंसर कर पाओगे. फोटोसिंथेसिस में पहला जो लाइट रिएक्शन में होता है, रिएक्शन क्या है? हाँ, सेकेंड स्टेप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में कौन सा आयन बनता है? H प्लस आयन बना. जब H प्लस आयन का एक्यूमुलेशन सेल के अंदर होगा, गार्ड सेल के अंदर क्या क्लोरोप्लास्ट है या नहीं है? है. क्यों नहीं है? गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस है. ठीक, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, दिन के समय में फोटोसिंथेसिस होगा, उसके अंदर ग्लूकोज बनेगा. जब ग्लूकोज बनेगा अंदर हाइपरटोनिक हो जाएगा. जब हाइपरटोनिक होगा तो आजू बाजू से पानी अंदर की तरफ वो खींच लेगा और टर्जिड हो जाएगा, स्टोमाटा को खुला रखेगा. ये पुराना थियरी. उसके बाद फिर आया पोटेशियम आयन थियरी. ठीक है, तो यहाँ मेन पॉइंट क्या है? जब फोटोसिंथेसिस होता है, ओके, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ऐसे ऐसे कुछ स्टैक्स बना लेते हैं या इस तरीके से बनाते हैं, अंदर स्टैक्स बनाते हैं और इस सबको कनेक्ट कर दिए. सो गार्ड सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट. Inside the chloroplast, photosynthesis will take place. During photosynthesis, photolysis of water will take place. During photolysis of water, H plus ions will release. If H plus ions will accumulate, the pH will become acidic. इसीलिए ये जो प्रश्न है, pH of the guard cells increases during daytime. True. ठीक, टुगेदर विथ वाला क्वेश्चंस है. आंसर केवल ट्रू और फॉल्स लिखा रहता है, इसके पीछे ये सब कहानी समझना होता है. Structure of hydatodes and stomata are similar. क्या हाइडाटोड और स्टोमाटा का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा? हाइडाटोड कहाँ पे है? लीफ के मार्जिन्स में रहेगा, जहां वेन्स का एंडिंग हो रहा है. एंड होगा यहाँ पे, तो इस एंडिंग ऑफ द लीफ वेन्स के पास से डायरेक्ट वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकल जाएगा. तो उसका स्ट्रक्चर और स्टोमाटा का स्ट्रक्चर 100%
फर्क रहेगा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर तो गार्ड सेल, दोनों तरफ किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स रहेगा, इसके ऊपर ना बनता है। और स्टोमेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लोज हो सकता है, ओपन हो सकता है, लेकिन हाइडाथोड्स ऑलवेज ओपन। herbaceous plants growing in well watered soil are found to wilt on a hot day. Give scientific reason. herbaceous, हाँ हाँ हम्म 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 तो भैया देखिए, हर्बेशियस प्लांट है, छोटा पौधा है, गर्म दिन है, लेकिन वेल वाटर्ड सॉइल है, और तभियो बोल रहा है कि इट इज फाउंड टू विल्ट। कैसे? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन exceeds rate of absorption of water। क्यों ऐसा? पानी है लेकिन खींच नहीं पा रहा, बेचारा कमजोर है क्या? दोनों में फर्क है। बड़े जो पौधे होते हैं, ट्रीज हैं, उनका जो क्यूमुलेटिव ट्रांसपिरेशन पुल बनता है, गर्म दिन तो है, कड़कड़ाता धूप है, लेकिन पत्ता एकदम चिलमिल चिलमिल चमकेगा, खूब ट्रांसपिरेशन होगा, लेकिन जितना ट्रांसपिरेशन होगा वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके रूट के पास से उस पानी को खींच लेगा ऊपर। लेकिन हर्बेशियस प्लांट में दिक्कत ये है छोटा पौधा, और पत्ता सब जो इसका रहता है, ट्रांसपिरेशन तो हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा डिपेंड करता है, हाइडाथोड्स वगैरह इसमें रहता है, तो ट्रांसपिरेशन पुल का कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा ये हर्बेशियस प्लांट्स में नहीं होता है। इसके कारण रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। केवल रूट प्रेशर के माध्यम से ज़्यादातर हर्बेशियस प्लांट में पानी ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि जिस स्पीड से उधर से पानी भाग रहा है ट्रांसपिरेशन के द्वारा, उस स्पीड से ये पौधा मेकअप नहीं कर पाता है पानी को एब्जॉर्ब करने में रूट्स के पास से। ठीक, नेक्स्ट। Stomata are located more on the ventral side of a leaf. तो हम लोग ने जो कंसाइज में पढ़ा, डॉर्सल जो क्लासिक डेफिनेशन है वो क्या बोलता है? डॉर्सल का मतलब है अवे फ्रॉम द ग्राउंड, और वेंट्रल का है मतलब टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो लीफ में जब हम लोग अप्लाई करेंगे यही चीज, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ जो है वो कहलाना चाहिए डॉर्सल की वेंट्रल। अच्छा, हम लोग जो
अच्छा, प्लांट्स में थोड़ा हल्का चेंज है, एनिमल्स में हम लोग यूज कर रहे हैं ये पाथ कीवर्ड वर्ड। प्लांट्स में क्या बोल रहा है, डॉर्सल सरफेस ऑफ द लीफ इज डिफाइंड एज द प्लेन फेसिंग द एपिकल पोर्शन ऑफ द शूट। तो मैच कर रहा है, देखो ये लीफ का अप साइड हो गया, ये डाउन साइड हो गया। अप साइड में डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन ये बोल रहा, डॉर्सल अवे फ्रॉम द ग्राउंड, वेंट्रल टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो ऐसे में ये एक डेफिनेशन, और प्लांट के लीफ में क्या बता रहा, इज डिफाइंड एज द प्लेन फेसिंग द एपिकल पोर्शन ऑफ द शूट। एपिकल पोर्शन ऑफ द शूट यानी जो ऊपर वाला, एपिकल यानी एपेक्स यानी ऊपर वाला हिस्सा। अगर ये ट्री है, ये इसका ब्रांचेस वगैरह निकला हुआ है, तो इसके तरफ फेसिंग करने वाला यानी ऊपरी वाला हिस्सा। बात तो इसके साथ मैच कर, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी तो है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में अपना जो लिख दिया है, ये जो डॉर्सल वाला सरफेस नीचे लिखा है ना, पेज नंबर 59, लोअर सरफेस डॉर्सल, अपर सरफेस वेंट्रल करके लिखा है। अच्छा, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, during photosynthesis how many water molecules are required to form one molecule of glucose? Water molecules are required to make one molecule of glucose. Oxygen in glucose comes from which of the following during photosynthesis? Oxygen in glucose, whether it is coming from water, carbon dioxide, both water and carbon dioxide. वाटर का तो फोटोलाइसिस हो गया भैया, ऑक्सीजन उड़ गया। वाटर का तो फोटोलाइसिस हो गया, फोटोलाइसिस हो के वो तो ऑक्सीजन बन के निकल गया। फोटोलाइसिस के स्टेप में ही ऑक्सीजन तो निकल गया गैस बन के। अब फिक्सेशन ऑफ कार्बन जो हुआ स्ट्रोमा में, CO2, वही वाला ऑक्सीजन होना चाहिए। क्या बोलते हैं? कि नहीं? विचार करो, नहीं तो भूल जाओगे फिर से। देखो पेज नंबर 71, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, NADPH फॉर्मेशन, ऑक्सीजन लिबरेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। वही तो
साला पगलेट जैसा आंसर लिख देता है कंफ्यूज करने के लिए। इसे इसमें रॉन्ग आंसर दिया गया है। तो ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम विच ऑफ दिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? इट विल कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि भैया फोटोलाइसिस में तो ऑक्सीजन उड़ गया, अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होगा along with NADPH, पीएच का जो हाइड्रोजन है वो जुड़ेगा इसमें, हाइड्रोजन का भाग। बाकी ये कार्बन, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का भाग है। ठीक, तुम्हारा कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ गुड इवनिंग मैम। हाँ क्लास आ गया है, क्लास में है। ओह हाँ, अच्छा ठीक है, हम बोलते हैं। ठीक ठीक ठीक, हम बोलते हैं। सबको चिंता होता है कि 150 सीसी का जो बाइक तुमको दिया गया है उसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो। तुमको चाहिए 50 सीसी का बाइक, तुमको मिल गया 150 सीसी का बाइक। चलो, सबसे अच्छा है साइकिल चलाया करो भैया, हेल्थ भी बढ़िया रहेगा। स्पीड कंट्रोल और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट। तो देखो ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आया। व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस? ऑप्शंस बताते हैं। सिंथेसाइज ग्लूकोज, एक्टिवेट क्लोरोप्लास्ट, स्प्लिट वाटर, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन में वही जो था वही बता दिया, ऑप्शन में वही दिया गया, वही करेक्ट है क्या? और था एब्जॉर्प्शन, सिंथेसाइज ग्लूकोज, स्प्लिट वाटर, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ दिल, क्या बोलते हो? देखो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का उपयोग क्या है? और आकृति, यू आर ऑनलाइन, सॉरी आई फॉरगॉट। हाँ, आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ बोलो, आंसर बोलो। सर मे बी स्प्लिट ऑफ वाटर। हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। हाँ, तो भैया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ, अगड़म फगड़म, तो हमको उससे क्या पर्पस क्या सर्व किया? पर्पस सर्व किया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, इंपॉर्टेंट। The first stable product formed during carbon dioxide fixation. अब नहीं कोई जरूरत नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? एंड प्रोडक्ट सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट नहीं आएगा, वो तो प्रोडक्ट के दायरे में भी नहीं आता है। सर स्टार्च। हाँ, ग्लूकोज, ग्लूकोज 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 जो है वही है मेन प्रोडक्ट, और यही ग्लूकोज बाद में बन जाएगा स्टार्च। लेकिन क्वेश्चन क्योंकि साफ था कि इमीडिएट एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज।
अच्छा, एक आलतू फालतू क्वेश्चन है लेकिन हम चाहते हैं एक बार ट्राई करो. फंजाई और मशरूम्स आर plants which cannot perform photosynthesis. True or false? See, very good. टेक्स्ट बुक में यूजलेस टाइप का चीज दिया था, तो ये वाले में तो हम बोले कि देखो वही चीज है, जब हम लोग कोई भी तुम क्वेश्चन बैंक ये वो सब चीज अगड़म फगड़म उठा लोगे तो उसमें गलतियां होंगी, जरूर होंगी. इंटरनेट से कोई भी तुम उठा लोगे एमसीक्यू वाला या नोट्स टाइप का कुछ भी उठा लो, उसमें गलतियां 100% होंगी, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट का जो है ना फालूदा बन जाएगा, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाएगा. ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि स्टूडेंट तो वही सोचता है किताब में लिखा है भाई, गलत तो नहीं होगा. In photophosphorylation, energy is needed to add phosphate to dash. Sir, ADP. ADP. ADP will be converted to ATP. No. In photophosphorylation, energy is needed to add phosphate to ADP. इसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं. What is the source of energy in photophosphorylation? फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है, इसको एनर्जी की जरूरत है कि नहीं? एडीपी में एक फॉस्फेट ऐड करना है, ये तो इनऑर्गेनिक पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, PO4 3- ईटो कैट आयन घूम रहा है साइटोप्लाज्म में और एडीपी भी घूम रहा है साइटोप्लाज्म में. अब इन दोनों को जो है अटैच करना है स्पॉन्टेनियसली, ये दोनों का अटैचमेंट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है. अब वो एंजाइम जो है इन दोनों को जो है अटैच करेगा, तो वो अटैचमेंट जो दोनों को करेगा उसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी आता कहाँ से है? ये H+ आयॉन्स का जो फोटोलाइसिस में बना, उसी के ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से वो निकालेगा. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हटाओ. ट्रू और फॉल्स? Food is translocated by xylem. Photosynthesis is the process of the splitting of the water molecules in the presence of the grana and temperature. फॉल्स से है. कुछ कुछ बढ़िया क्वेश्चन रहता है, कुछ कुछ बेकार क्वेश्चन रहता है. The dark reaction of photosynthesis is light independent. A plant is placed, we discussed last time maybe. Pulse wave is mainly caused by उसमें भी ज़्यादा अगर स्पेसिफिक पूछा जाए,
सिस्टोल ऑफ एट्रिया, डायस्टोल ऑफ एट्रिया, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टोल ऑफ राइट वेंट्रिकल। आकृति बोलो। Sir, ventricular systole. है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, लेकिन लेफ्ट की राइट। बोलो। गारंटी लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट, the non-nucleated mature blood cells in mammals. RBC. The fluid that transports fatty acids and glycerol. The fluid that transports fatty acid and glycerol. ब्लड में डायरेक्ट जो है चर्बी तेल वगैरह नहीं घूमेगा, लिम्फ में घूमेगा। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन की तीसरा कैपिलरीज आर दी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। हाँ कि ना? पता नहीं। अरे भैया सबसे महीन ना होता है कैपिलरी, सबसे छोटा मतलब तुम क्या सोचे? लेंथ के मामले में, अगर ओवरऑल लेंथ के मामले में देखा जाए, कैपिलरी का कोई तोड़ नहीं है, सबसे लंबा नेटवर्क तो उसी का है, लेकिन साइज के मामले में छोटा है। The blood vessel that supplies oxygen to the heart. दूसरे नंबर मार दिया। यही तो प्रश्न पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, ब्लड वेसल दैट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द हार्ट, that carries oxygenated blood to the heart from the lungs, वो सब नहीं ना बताया, हार्ट को भी तो चाहिए। The artery which carries deoxygenated blood, pulmonary artery. The valve present between, आदिल बोलेगा, right atrium and right ventricle. Right atrium, right ventricle. ये कौन साइड है? अब बताओ, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इधर कौन सा वाल्व रहेगा? दो ठो कि तीन ठो है? राइट होता है झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसा याद रखो। दैट इज ऑलवेज राइट, झंडा ऊंचा रहे। तीन रहता है ना, तीन। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर दो ठो। लेफ्ट छोड़ दिया, लेफ्ट छोड़ दिया ना, लेफ्ट लेफ्ट क्या बोलता है? लेफ्ट तो बोलता है, छोड़ दिया लेफ्ट। इधर तीन है, इधर लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, दुए ठो। ये बाई का स्पीड हो गया, ये ट्राई का स्पीड हो गया। कुछ कुछ कहानी बनाया करो याद रखने के लिए, नहीं तो थोड़ी ये सब
कंफ्यूज होते रहोगे हमेशा. द फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द हार्ट. मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम, फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड. शॉक अब्सॉर्प्शन, इम्पैक्ट, चोट, ये वो सबसे. द फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इन विच द वेंट्रिकल्स रिलैक्स. हाँ हाँ, वेंट्रिकुलर डायस्टल, करेक्ट. Rate of the heartbeat is controlled by cranial nerves, spinal nerves, sympathetic nerves की और कुछ. Rate of heartbeat. ऐसे नोट ना, वो लोग का कोई काम ना है. क्रेनियल, स्पाइनल, सिंपैथेटिक, ऐसे नोट. ये जो भी करेगा, एड्रेनलिन सेक्रेशन होगा तो सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट होगा. लेकिन डायरेक्ट हार्ट बीट रेट को ऐसे नोड ही. द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द लिवर इज डैश. लिवर को कौन खून पहुंचाता है? हैं, vein, hepatic portal vein supplying blood to the liver. भैया देखिए, कंफ्यूजियाना ने, लिवर कोई भी ऑर्गन है, उसको जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, वो कौन देगा? आर्टरी देगा कि वेन देगा? आर्टरी देगा. तो इसका आर्टरी कौन है? ये तो लीवर है ना, तो हिपैटिक हो गया, हिपैटिक आर्टरी. अब इसमें से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन निकालेगा? वेन निकालेगा, हिपैटिक वेन. अब तीसरा जो है, एक तो कैटेगरी निकल गया था जो कि इंटेस्टाइन और स्टमक दोनों से जो है कैपिलरीज जुटते हुए लीवर की तरफ जाएगा और फिर लीवर में कैपिलरीज बन जाएगा. ये वाला केवल कहलाएगा हिपैटिक पोर्टल वेन. ठीक. Vitamin necessary for blood clotting. K for clotting. The process by which the leukocytes squeeze out of the walls of the capillaries. Spelling बताइए. DIA diapiedesis. diapiedesis 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हर साल. अगर ऑप्शन में आ गया तो समझो किस्मत अच्छी है. अगर फिल इन द ब्लैंक में वन वर्ड आंसर में आ गया तब स्पेलिंग तो और वन वर्ड वाले में गिव दिस टर्म फॉर दिस, उसमें आ सकता है, ज़्यादातर उसी में आता है. हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू डैश.
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन. Give scientific reason. Mature erythrocytes in human lack nucleus and mitochondria. हमको हिंदी में आंसर मत दो, तुम लिखोगे क्या आंसर ही बोलो अंग्रेजी में. दो ही पॉइंट्स लिखोगे. न्यूक्लियस ये डिब्बा में लिखा हुआ है 94 पेज नंबर में, बहुत अच्छा, शॉर्ट एंड क्रिस्प. स्पेस इन बिटवीन इंक्रीज्ड, मोर आरबीसीज कैन अकोमोडेट इन द स्मॉल स्पेस. ये हो गया न्यूक्लियस का लॉस. और दूसरा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का लॉस में, या ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल फॉर, there will be no competition for the consumption of oxygen from the mitochondria. It will be completely used only for carrying by the hemoglobin. यही चीज को फ्रेम करने में ना बच्चा परेशान हो जाता है. इसीलिए इस चीज को हम पीडीएफ में करके लिखें, वो हम भी उसको थोड़ा रिफाइन किए हैं, उसको देख लेना, उसको पढ़ना जरूर. नहीं तो फिर एग्जाम के टाइम में जो है ना कलम हिलबे नहीं करेगा, या तो पूरा तुम ग्रंथ लिख डालोगे उधर में, या तो कुछ लिख ही नहीं पाओगे. उस समय जैसा मन स्थिति रहे. Blood flows in arteries in spurts and is under pressure. Give reason. Because of इसका मेन कारण है भैया ड्यू टू रिकॉइल. क्या बोले हैं? हाँ देखो भैया, बोल चाल में हिंदी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आंसर बोलो तो अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी में. हाँ, बोलिए. शब्द यहाँ क्या यूज करना है? की वर्ड है रिकॉइल. आर्टरीज हैव इलास्टिक मस्कुलर वॉल and on the ventricular systole, okay, they will expand and then they will relax. So that is what we say elastic recoil. That is also responsible for the pulse, formation of pulse. इसको जैसे इसने क्या लिखा है देखते हैं, इसका फ्रेजिंग कैसा था. Arteries have to carry blood to long distances, therefore blood flow in jerks and is ऑलवेज अंडर प्रेशर. ये तो फालतू आंसर लिखा है, ये वाला आंसर लिखोगे तो नहीं चलेगा. हाँ ओके. विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑर्गन्स? आउटा. कार्डे टिंडे का क्या फंक्शन है? It keeps the cuspid valves या atrioventricular valves, bicuspid or tricuspid, okay, it keeps them in position. It keeps them in position. It keeps the cuspid valves या atrioventricular valves, bicuspid or tricuspid, okay, it keeps them in position. It keeps the cuspid valves या atrioventricular valves, bicuspid or tricuspid, okay, it keeps them in position. It keeps them in position.
Okay, it keeps them in position. It prevents their नहीं अलग नहीं, वो जो back flow of the blood, it prevents the back flow of the blood, but main thing is it keeps them in position. हाँ, इसका पॉइंट भी है टेक्स्ट बुक में. इन चीज़ों के ऊपर देखो, शब्दों के ऊपर ध्यान देना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है. लगता क्या है तो हो गया, तो समझ गए हो, और लिखने जब बैठोगे तो कलम चलबे नहीं करेगा. वही होता है. इसीलिए जो टर्मिनोलॉजी है साइंस में वो इम्पॉर्टेंट है. आप बोलचाल के भाषा में चीज़ों को समझिए. इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट एकदम बहुत सुंदर तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा. लेकिन लिखने के लिए जो है आपको प्रॉपर साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज करना है. समझने के लिए बोलचाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. लब डब साउंड based upon the valves that are involved. लब साउंड किसके कारण हुआ? एट्रियोवेंट्रिकुलर डब साउंड सेमीलुनर वाल्व्स. चलिए बढ़ें अब हम आगे अपने अगली चैप्टर की तरफ. In man, the portal vein carries blood from the intestines to the kidney, liver, heart. लिवर. अच्छा, और कोई दूसरा पोर्टल वेन है अपने शरीर में? कहाँ है जी? ब्रेन वाले में. अच्छा, वो अपने सिलेबस के बाहर हटाओ. Which of the following blood vessels in man carries the least concentration of urea? Hepatic vein, renal vein, renal artery, hepatic artery. Renal vein is going to take the blood away from the organ towards the heart. तो जो रीनल आर्टरी है उसमें ज़्यादा यूरिया था जो कि छना किडनी में और फिर रीनल वेन बन के बाहर निकला. तो अब ये बताइए, रीनल वेन में यूरिया ज़्यादा होगा कि रीनल आर्टरी में ज़्यादा होगा? हाँ, आर्टरी में ज़्यादा होगा. अच्छा, लिवर हिपैटिक आर्टरी में ज़्यादा होगा कि हिपैटिक वेन में ज़्यादा होगा यूरिया? मामला गड़बड़ है, क्योंकि शरीर में यूरिया का प्रोडक्शन होता कहाँ है? लिवर में होता है. एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है. समझे? यूरिया को लीवर बनाता है. अच्छा, इसको बैठले बैठले काम ने यूरिया क्यों बनाए? क्योंकि जो प्रोटीन खाए, वो प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, उसमें जो एक्सेस नाइट्रोजन है उसको शरीर से निकालना है ऑर्गेनिक फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में. तो इसीलिए उसको यूरिया के इसमें कन्वर्ट किया गया. टेक्स्ट बुक की बात है, बाहर की बात नहीं है. By oxidative deamination reaction, liver converts the proteins or amino acids into urea. ये बहुत ही important point. क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है. फर्स्ट टर्म को गोली मारो, आगे भी एग्जाम में. तो liver is the site of the production of the urea. Kidney is the site of the purification, removal of the. ठीक. तो अब बताइए कि
हिपैटिक वेन में ज़्यादा आर्टरी होगा कि हिपैटिक आर्टरी में ज़्यादा होगा यूरिया? जहाँ से यूरिया से खून बाहर निकलेगा उसमें ना ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, निकला किससे बाहर? वेन से निकला, तो उसमें ज़्यादा हो। ठीक, चलो। Thrombokinase is a antibody, an enzyme, a waste product. It is released by platelets. हाँ, ये तो बहुत साला आसान कर दिया। रिलीज प्लेटलेट्स को हटाओ। एंटीबॉडी, एंजाइम, वेस्ट प्रोडक्ट। एंजाइम है, एंजाइम है। एंजाइम क्या करता है? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो थ्रोम्बोकाइनेस का रिएक्टेंट कौन है? Prothrombin is converted to thrombin by the action of thrombokinase. एंजाइम है। The nearest organ to which the heart supplies oxygenated blood is heart itself. Fibrinogen is an insoluble protein, true or false? फाइब्रिनोजन क्या है? सॉल्युबल। वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ तब इंसॉल्युबल बना। Pulmonary artery is the largest artery, true or false? कौन तो होगा? क्वेश्चन देखिए। हाँ हाँ, डब्ल्यू arteries ends in capillaries, true or false? Arteries will take the blood towards the heart, away from heart, away from heart. तो हार्ट के पास से जो शुरू हुआ, मुटका वेसल बन के निकला, ऑर्गन के पास पहुंचने के बाद बेटू, थैंक यू बेटू रे। तो ऑर्गन के पास पहुंचने के बाद जो है वो कैपिलरी, महीन महीन ब्लड वेसल बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करके इसको जो है करता है, बट मोटा मोटी देख लो। ओ ब्लड ग्रुप कंटेन्स एंटीबॉडीज, ट्रू और फॉल्स? नहीं होता। ए बी में तो खूब होता है। प्रश्न पे कृपया ध्यान दीजिए। ए बी, यह भी वो, ये हो गया ब्लड ग्रुप, ये हो गया ब्लड ग्रुप सब। एंटीजन, एंटीजन कौन कौन तो रहेगा इसमें? ए बी, ए एंड बी, इधर नो। एंटीबॉडी इसमें बी, इसमें ए, इसमें कुछ नहीं, इसमें ए और बी दोनों हो सकता है। ट्रू और फॉल्स?
जब वो ब्लड ग्रुप दूसरे के खून में जाएगा तो उसका ब्लड क्या एंटीबॉडी बनाएगा? नहीं बनाएगा। लेकिन जिसका खुद का वो ब्लड ग्रुप है, उसके खून में जब ए ब्लड ग्रुप आएगा तो रिएक्शन होगा, होगा। बी ब्लड ग्रुप आएगा, रिएक्शन होगा, होगा, क्योंकि उसके बॉडी में एंटीबॉडी है। करेक्ट। Proximal convoluted tubule of nephron lies in the medulla ureter cortex. क्या बोलते हो भैया? नहीं, अकोंठो मेड्यूला में होगा। क्यों नहीं? किडनी का स्ट्रक्चर याद आया? बीचों बीच को एक तो येलो वाला ट्रायंगल नहीं बना था? हाँ, पिरामिड, और उसमें लंबा लंबा डिजाइन नहीं बना था? और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में लंबा जैसा कौन तो था? सीधा, सब तो नूडल बना हुआ था, एक तो लंबा था, कौन तो था? मुर्गी, मुर्गी, मुर्गी बोलो। हेन हो बाबू, हेनली। हाँ, लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली सीधा सीधा लंबा लंबा था। वही चीज किडनी में पिरामिड के पास लंबा लंबा दिख रहा था। ठीक, तो बाकी सब जो भी है वो सब कॉर्टेक्स में, केवल लूप ऑफ हेनली मेड्यूलरी पिरामिड में पाया जाएगा। What is the principal nitrogenous waste in human? यूरिया, यूरिया। हमारे शरीर में अगर अमोनिया का थोड़ा भी कंसंट्रेशन बढ़ता है वो तो जानलेवा हो सकता है। क्यों? क्यों? वाई वाई वाई? HCl और अमोनिया का केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़े, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हाईली सॉल्युबल, इतने ज्यादा सॉल्युबल है कि साला पानी को खत्म कर दे। We will discuss, हाँ देखते हैं। बर्टीनी स्पेशल स्ट्रक्चर है उसमें, देखते हैं। अपने सिलेबस में उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। The nephrons discharge their urine at urinary bladder, renal pelvis, renal pyramid, urethra. Nephrons discharge their urine. देखो किडनी का जो स्ट्रक्चर है, बाहर में कॉर्टेक्स, बीच में मेड्यूला, और जो अंदर में आए तो खोखला जैसा रीजियन है, वो बोलते हैं पेल्विस। पूरा कॉर्टेक्स में तो नेफ्रॉन भरा हुआ है, और मेड्यूला वाला रीजियन में उसका हिनली बना हुआ है, और उसके बाद जो यूरिनीफेरस, हिनली तो बस ऐसे गया लंबा नीचे, फिर ऊपर ना आ गया, ऊपर आके फिर कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। कलेक्टिंग डक्ट जो है कहाँ जाएगा अल्टीमेटली? वो जाता है पेल्विक रीजन में जाएगा, पेल्विस। ओके, तो पेल्विस में जाके कलेक्ट होगा यूरिन, वहाँ से जो है यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा बाहर जाए। अगर नेफ्रॉन शब्द के जगह पे किडनी का शब्द का प्रयोग किया होता तब अल्टीमेटली तो यूरेथ्रा के द्वारा बाहर जाता है, लेकिन जब नेफ्रॉन बोला तो नेफ्रॉन तो अल्टीमेटली खत्म होता है उसका कलेक्टिंग डक्ट के साथ, खत्म हो जाता है। ओपन दैट पेज, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर।
पेज नंबर 115। क्या क्या है उसमें देख लो एक बार। कॉर्टेक्स बाहर में है, बीच में मेड्यूला है, मेड्यूलरी पिरामिड बोलते हैं। हाइलम रीजन है जो कि उसका जो कॉनकेव पार्ट है, उसका जो डिप्रेशन है उसको बोलते हैं हाइलम रीजन। इसी हाइलम रीजन के द्वारा जो भी इनलेट आउटलेट का जो भी सिस्टम है, ब्लड वेसल का, कलेक्टिंग डक्ट का, सब कुछ वहाँ से होगा। अच्छा, अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए अगले ही पेज में। कलेक्टिंग डक्ट सबसे लास्ट में कहाँ गया? कलेक्टिंग डक्ट में गया ना नेफ्रॉन से। तो जो भी नेफ्रॉन है, जो भी इसमें प्यूरिफिकेशन हुआ, लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा वो पहुंच जाएगा पेल्विस रीजियन में। पेल्विस पेल्विस लोकेशन पता चला दिल कहाँ पे है? हाँ, तो नेक्स्ट पेज में देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। बोमेन कैप्सूल से शुरू हुआ, एकदम लास्ट में जो लंबा जैसा सीधा जैसा मोटा जैसा है ना पाइप, क्या नाम है उसका? कलेक्टिंग डक्ट। वही कलेक्टिंग डक्ट में लास्ट में कलेक्ट होगा यूरिन, और ये कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली पेल्विस रीजन में जाएगा। हाँ, चलिए एक दो प्रश्न और देखेंगे, उसके बाद बंद करते हैं। चलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स में। sorry, that brain. Which part of the brain is associated with the maintenance of posture? Bellum. The control center for respiration is? रेस्पिरेशन का कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है? मेड्यूला ऑब्लांगाटा। The point of contact between two neurons is called? Point of synapse. हाँ, ट्रू फॉल्स बोलिए। गैरी सल्की आर दी फोल्ड्स ऑफ द सेरिबेलम। गैरी एंड सल्की आर दी फोल्ड्स ऑफ द सेरिबेलम। मच्छर आके गिर गया इस पे। भैया सेरिबेलम में है कि सेरिब्रम में है? हाँ, white matter contains the cell bodies of neurons. Knitting is a inborn reflex action. Knitting, बुनना, बिनना, स्वेटर बिनना, acquired reflex action. चलिए ठीक है, आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। Anything you want to ask, Agriti? No, sir. Okay, thank you all.